مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، تو میں نے بھی بہت پیارا جواب دیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک دن میرے پاس ایک بند آیا کہ جنت کیا ہے کہ میرے پاس ایک بند آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب جنت کیا ہے، تو وہ بھی بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے تھے کہ میں نے بھی بہت پیار سے ہنسا اور اسے کہا کہ جنت ایک ویران سی جگہ ہے، جنت کنڈرات ہے، جنت ایک سنسان سی جگہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کافی پریشان ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے، لوگ تو کہتے جنت تو وہاں پر باغات ہیں، وہ جو چیز آپ کا دل چاہیں گے آپ کو وہی چیز ملے گا۔ تو مولوی صاحب نے ایک بات بہت پیاری مجھے کہی کہ اس نادان کی باتیں سن کر میرے دل میں دو تین باتیں یوں ہی بس منہ پہ آ گئے، اور میں نے اسے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ آپ اس بات کو نہیں سمجھے کہ جنت اس جہان میں نہیں ملنے والا ہے، جنت اس جہان میں ملنے والا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنت آپ کو خود کمانی پڑتی ہے، جنت آپ کو اس طرح کمانا پڑتا ہے۔ اور مولوی نے کہا کہ میں نے اس بندے کو بڑے پیار سے سمجھایا، کہتے ہیں جس طرح آپ اس دنیا میں عمل کرتے رہو گے اس طرح آپ کے نام پر جنت میں ایک درخت لگے گا، جس طرح آپ کچھ اچھی نیکی کرو گے آپ کو ادھر وہ جنت بنتا جائے گا۔ وہ جنت آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ یہاں پر جو بھی کام کرنے والے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں چاہے اچھا ہو یا برا، وہ آپ خود بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی جنت کو خود ہی بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اچھے کام کرو گے، آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کا جنت بھی اچھا بنتا جائے گا۔ تو مولوی نے کہا کہ وہ بندہ کافی پریشان ہوا اور مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب پھر دوزخ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے مسکرا کر پھر سے جواب دیا کہ آپ کافی نادان ہیں، آپ کو میں نے اگر جنت کا سمجھا دیا کہ جنت آپ کو خود بنانی پڑتی ہے، آپ خود ان کو بنائیں گے۔ اس جہان میں، اس دنیا میں جو کچھ کرو گے وہ باقاعدہ سٹور ہوگا۔ آپ ایک اچھی نیکی کرو گی تو وہاں پہ آپ کا ایک درخت اگے گا، اس طرح آپ کا جنت یہاں سے بنے گا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ جنت مرنے کے بعد ملے گا، جنت ملے گا تو مرنے کے بعد ملے گا۔ اور اس نے مولوی صاحب نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ جنت اس جہان پہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اس جہان پہ ہے، اس لیے اس جہان پہ آپ نے اچھے کام کرنے ہوں گے، اس جہان میں جا کے آپ کو جنت ملے گا۔ اس کے برعکس اگر سوچا جائے آپ اپنا دوزخ بھی خود بنا رہے ہیں، آپ اپنا دوزخ بھی خود بنا رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اچھے کام کرو گے، اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کا جنت بنتا جائے گا، اس طرح اگر آپ برے کام کرو گے تو آپ کا دوزخ بنتا جائے گا۔ اس لیے دوزخ بھی آپ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں اور جنت بھی آپ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں۔ اس لیے ایک دن ایک بندے نے مجھ سے کافی اچھا سوال کیا کہ کامیابی کیا ہے، واٹ از کامیابی، کامیابی ہے کیا؟ تو میں نے بہت پیارے لفظ میں اسے سمجھا اور بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اسے میں نے کہا کہ کامیابی، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر مرنے تک آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، اگر عمل آپ کے پازیٹیو سوچ پہ ہوں گے، اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ اچھے سوچتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، اس وقت سے آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے مرنے تک۔ لیکن یہاں پہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک
फिक्स टाइम होता है, वो हर चीज अपने टाइम पे राइज अप होती है, शो अप होती है, वो अपने टाइम पे आपको अपने आप दिखाते हैं कि मैं क्या हूं। इसलिए मेरे अगर उस बंदे ने मुझसे पूछा कि कामयाबी क्या होती, तो मैंने उसको समझा दिया है कि कामयाब होंगे तो आप अपने बलबूते पर होंगे, खुद पर होंगे। नाकामयाब होंगे तो वो भी आप खुद पर होंगे। ये आप पर डिपेंड है कि आप अपने कामयाबी के लिए कितने अच्छे और कितने बुरे काम करते हैं। अगर आपका सोच पॉजिटिव हो, अगर आप अपने कामयाबी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आप अपने कामयाबी के लिए एक अच्छा सोच रखते हैं, आप हर दिन अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा अपने गोल के बारे में भी सोचे, तो आप काफी कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग सेट नेगेटिव है तो आप समझे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो नेगेटिव माइंड वाले होते हैं वो अच्छा काम भी बुरा कर लेते हैं। जो नेगेटिव माइंड वाले होते हैं अच्छे सोचने के बजाय बुरा सोच लेते हैं। जो नेगेटिव माइंड वाले होते हैं वो कुछ अच्छा करने के बजाय बुरा कर बैठते हैं। इसलिए पॉजिटिव दिमाग वाले वो भी अपनी तरतीब से अच्छे सोचते हैं, उसकी अच्छे सोचने की उसे सिला मिलती है, और वो सिले का नाम है कामयाबी। इसलिए कामयाबी का भी एक फिक्स टाइम है, और मैंने उसे बहुत प्यारे लफ्जों में समझाया कि देखिए हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है, वो अपने फिक्स टाइम पे। इसलिए मैंने आपको जन्नत का मिसाल दिया। अगर आप जन्नत यहां बनाओगे, मरने के बाद हिसाब होगा। मरेंगे तो उसके बाद पता चलेंगे मेरा जन्नत बना है दोज़ख बना है, क्योंकि आपके अमल से शो होगा कि आपने क्या कुछ किया, अपने अमल के लिए अच्छा माल कमाए या बुरा का माल कमाए, क्योंकि यहां पर डिपेंड है। आपसे पता चलेगा कि आपकी मरने के बाद आपका हिसाब होगा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको जन्नत और दोज़ख के लिए मरना पड़ेगा। आपने अच्छे काम किए, बुरे काम करेंगे, ये मरने के बाद पता चलेंगे हिसाब किताब की। इसलिए आपकी कामयाबी का भी एक फिक्स टाइम है, उसका भी एक फिक्स टाइम आएगा, क्योंकि हर लम्हा आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रही है। हर उस अपॉर्चुनिटी को नेगेटिव माइंड वाले कभी कैप्चर नहीं कर सकते, वो एक ही बंदा कैप्चर कर सकता, वो पॉजिटिव माइंड वाले। इसलिए मैंने उसे खूब समझाया कि कामयाबी का भी एक फिक्स टाइम होता है। आपने अच्छा बात की कि हम पॉजिटिव माइंड के सोचने वाले भी हैं और हम अच्छा काम भी करते, फिर भी कामयाबी मुझे नहीं मिलने वाली। उसका सवाल ये जब उसने मुझसे किया कि माशाल्लाह हम काफी पॉजिटिव थिंकर हैं और कामयाबी भी मुझे नहीं मिल रही है, तो मैंने उसे कहा कि कामयाबी आपको मिलेगी तब जब उसका फिक्स टाइम आएगा। आप उनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसका भी एक फिक्स टाइम होता है। जिस तरह रात डलती है दिन आता है, जिस तरह रात डलती है दिन आता है, जिस तरह साल गुजरता है दूसरा साल आता है, जिस तरह एक दिन गुजरता है दूसरा दिन आता है, जिस तरह बारिश होती है फिर सूरज निकल आता है, जिस तरह गर्मी का मौसम होता है उस तरह सर्दियों का मौसम होता है, जिस तरह इंसान जवान होता है बाद में बूढ़ा होता है, जिस तरह पल के दरख्त हम उगाते हैं उसका भी एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। मुझे यहां पर एक बंदर की वाकया याद आया कि एक बंदर जंगल से किसी बंदे ने लाया था अपने घर में। जब उसने उस बंदर को घर में लाया है तो उस बंदर को उसका जो मालिक था कुछ दिनों के बाद वो वफात पा गए, वो मर गए। जैसे वो मर गए तो वो बंदर गांव वालों को बहुत तंग करती रहती थी, क्योंकि वो खाने पीने की आदत थी और वो अपने मालिक को तलाश करती, तो वो बाहर जाके एक दूसरे घरों से बच्चों को वगैरह को तंग करती। तो लोगों ने ये सोचा चलो इसको उठाते जंगल में फेंकते। बंदर को आम खाना बहुत पसंद था। क्या? बंदर को आम खाना इतना पसंद था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। जैसे उस बंदर को गांव वाले लोगों ने जंगल में छोड़ दिया, कुछ दिन होते रहे, उसने सोचा कि मेरे पास आम की हड्डी है। उसने आम की हड्डी उठाई और सोचने लगी कि अब मैं आम खाऊंगा, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि क्यों एक्सपायर हड्डी है। आम तो जो मिठी थी वो लोग वो खा गए, लेकिन बंदर ने सोचा है कि ये जो आम की हड्डी है मैं इसको जमीन में रखती हूं, चलो
ये पल बन जाएंगे, मैं इसे काटूंगा। उसने जैसे जमीन पे रखा, उसने हाथ मारे, वही हड्डी थी। उसने फिर ट्राई किया, उसे 2 घंटे वेट किया, फिर उगाया, फिर भी वो अपनी हड्डी थी। उसने सोचा कि शायद मैं कुछ जल्दी कर रही हूं, इसलिए इसको मैं टाइम देता हूं, आज लगाता हूं, कल देखता हूं कि उगता है या नहीं उगता। जैसे वो कल आई तो वो हड्डी उस तरह थी। उसने सोचा कि ये शायद हड्डी में फॉल्ट है, उसने हड्डी फेंक दिया। क्या किया? उसने हड्डी फेंक दिया। जब उसने हड्डी फेंक दिया, रिजल्ट में आप लोगों को देना, समझाने कामयाबी समझा रहा हूं। जैसे उसने हड्डी तोड़ दिया तो लोगों ने, उसने खुद काफी हैरान हो गई, जो चीज था मेरे पास वो भी मैंने गिरा दी, अब मैं क्या कहूंगा। मकसद उसे छीना गया। स्टूपिड, उसने वो चीज गिरा दिया जिस चीज से उसे पल मिलने वाली थी। क्योंकि उसने गिरा दिया तो उसने बाद में सोचा कि उसके पास सोचने की तो कोई उनके पास प्रोसीजर नहीं थी। तो मैं यहां पे आप लोगों को समझाना चाहूं, बंदर को तो यह समझ नहीं थी कि ये मेरे पास हड्डी है, इनको मैं लगाऊंगा, हर दिन इसको पानी दूंगा, 1 महीना लगातार मैं इनको पानी दूंगा, तब ये छोटा सा पौधा उगेगा। फिर उसका ख्याल रखूंगा, उनका भी पानी रखूंगा, बाकायदा उसको मिट्टी दूंगा, वो भी स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है। फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि जब ये इसका प्लांट उगेगा, पौधा उगेगा, फिर भी इनका एक टाइम होता है, 8-10 साल होते हैं कि वो आम पकड़ते हैं। फिर उसने ये भी नहीं सोचा जब आम होते पहले कच्चे होते हैं, पहले वो कच्चे प्रोसेस से गुजरते, पकने तक उसमें देर लगती है। फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि वो जब पकते तो किस तरह ऊपर जाके उसको काट के नीचे लाना है, क्योंकि बंदर के पास इसने सोचने की सलाहियत नहीं थी। और बंदर यहां तक नहीं सोच सकती कि क्या मैंने ये हड्डी लाई, मैंने इनकी इतनी लंबी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद ये पल मुझे मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको कामयाबी चाहिए, कामयाबी मांग से नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। कामयाबी के लिए एक फिक्स टाइम होता है। देखिए, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट लिया, उसे करते टाइम लगता है। मैंने एक जॉब किया, बंदा एक क्लार्क लगता है, उसे लगते मैनेजर MD तक पहुंचता है। एवरीथिंग, हर चीज दुनिया में टाइम मांगता है। तो मैंने उसे खूब समझाया कि अगर आपने कामयाब होना है, आपके अच्छे आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप मुझे कहते कि मैं पॉजिटिव थिंकर में हार्ड वर्क भी कर रहा हूं, तो मैंने उसे समझाया कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए आप उम्मीद ना तोड़े। एक फिक्स टाइम आएगा, आपकी कामयाबी बोलेंगी कि वाकई मैं कामयाब हूं। अब आप खामोश रहें। इसलिए कामयाबी के लिए आपने अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आपने मानना पड़ेगा कि हर चीज में वेट की जरूरत है, इंतजार करना पड़ेगा, आपको काफी सब्र करना पड़ेगा। जिन बंदे का दिल बड़ा होता है, उनके पास जिगर होता है, सब्र करने की उनके पास तौफीक होती है, तो वो जिंदगी में काफी आगे तक जा सकता है, वो जिंदगी में काफी कामयाब हो सकता है। इसलिए अगर आपको कामयाबी चाहिए, आप पॉजिटिव थिंकर बन जाए, आपको कामयाबी बन जाए, तो आप उस चीज को मेंटेन करें जो चीज आपने सेलेक्ट किया है करने के लिए, उस चीज को आगे जाने के लिए, तो आप काफी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए कि हर चीज आने का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो चीज अच्छी लगती है।